اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. لیسن ہے لہن. لہن کا مطلب کیا ہے؟ لہن کا لغوی معنی پہلے دیکھتے ہیں. لنگوسٹک میننگ اس کی کیا آتی ہے؟ تو اس کی لنگوسٹک میننگ آتی ہے غلطی، یعنی کوئی بھی غلطی کر دیں، غلطی کو کہتے ہیں لہن. لہن. اور اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لہن کہتے ہیں. اگر کوئی تجوید کے خلاف کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی جہاں گناہ کرنا ہے وہاں نہیں کر رہا ہے، نہیں کرنا ہے تو وہاں کر رہا ہے، تو یہ اصطلاحی یعنی اپلائیڈ میننگ بولتے ہیں نا، اس میں آئے گی وہ ٹرمینالوجی جو آتی. تو اس میں کیا ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لہن کہتے ہیں. کہ مخرج صفات جس طرح ہے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں لہن. اب لہن کے جو اقسام ہیں وہ دو قسم کے، یعنی دو اقسام آتے ہیں. ایک تو ہے لہن جلی اور دوسرا ہے لہن خفی. لہن جلی کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری غلطی، بڑی غلطی، کہتے ہیں نا جل جلال، بڑا، تو obvious جو سب کو نظر آئے، اتنی بڑی غلطی کہ جس کو تجوید نہیں بھی آتی نا وہ بھی آپ کو پکڑ لے گا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں آپ. تو اتنی بڑی غلطی کہ ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، جس کو تجوید آتی ہو یا نہ آتی ہو وہ سب سے بڑی غلطی ہوگی. اور لہن خفی یعنی خفی، ہڈن، جو میننگ ہڈن بولتے ہیں نا، خفی کا مطلب کیا؟ خفیہ، جیسے ہم اردو والے کہتے ہیں. ہڈن جو غلطی ہوتی ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، جو بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہیں ہی سمجھے گا کہ یہاں پر کیا غلطی کی ہوئی ہے، تو یہ چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے. تو لہن جلی اور لہن خفی. یہاں دیکھیے لہن جلی جو بڑی ظاہری غلطی، اس کو لہن جلی کہتے ہیں. تو بڑی اور ظاہری غلطی کو لہن جلی، اور اس میں کچھ اقسام دکھائے ہوئے ہیں، کچھ دکھائے ہوئے لیکن اور بھی اس میں آ سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا. جیسے الحمد تھا، اس کے بجائے ہم نے الحمد پڑھا، ہا کو ہا کر دیا، یعنی ہا لیٹر اس کو ہا کر دینا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بالکل مطلب چینج ہو جاتا ہے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب تو چینج نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے، یعنی کچھ اس کا میننگ لیس ہوتی ہے وہ چیز، لیکن پھر بھی وہ لہن جلی میں آئے گی. تو ہا کو ہا کر دینا، یا کوئی اور لیٹر کو بھی، جیسے قاف کو کاف کر دینا. تو اس طرح سے یہ جو غلطی ہوتی ہے، ایک حرف کو پورا، اپنے حرف جو تھا نا اس کو پورا کے پورا حرف چینج کر دیا، یہ سب سے بڑی غلطی آئے گی. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ کسی حرف کو کم یا زیادہ کر دینا. کم یا زیادہ پہلے اگزامپل لیتے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. لم یلد کے بجائے ہم نے کیا پڑھا؟ لم یالد. جیسے یلد پڑھنا تھا تو یا کر کے پڑھ دیا. اور اکثر اردو والے یہ غلطیاں کرتے ہیں. میرے اکثر اسٹوڈنٹ جب بھی فتح آ جائے، زبر آ جائے کسی چیز پر، تو اس کو بہت لمبا کر کے پڑھتے، کیونکہ اردو والے تھوڑے تان کے کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا، اس لیے بھی شاید میرے خیال سے وہ غلطی کر دیتے ہیں، ل کو لا کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. یلد تھا یالد کر دیے، ی کو یا کر دیے. پھر یولد، یو کو کھینچنا چاہیے تھا لیکن کیا کر دی، اس کے بجائے یولد کر دیں، یولد. تو یہ بھی بڑی غلطی ہوگی، حالانکہ یولد ہوگا. اس میں آگے قاعدے آنے گے کہ واو مد ہے تو اس کو کھینچنا ہے، کتنا کاؤنٹ کھینچنا ہے. تو یہ غلطی کیا ہو گئی؟ کسی حرف کو کم کیا یا کسی حرف کو زیادہ کر دیا، تو یہ بھی بڑی غلطی آئے گی. تیسری غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے ایک حرکت کا دوسری حرکت سے بدل دینا. اب ایک حرکت ہے، ہم سمجھتے یہ کیا لائٹلی ہم لے لیتے، یہ کیا صرف حرکت ہی چینج ہوئی ہے نا، ہم اس کو سمجھتے نہیں، کیونکہ
जिसको मीनिंग नहीं समझती है ना, जिसने तफसीर की हुई है, ट्रांसलेशन किया, उससे ये बात समझ में आएगी कि कितने बड़ी गलती है। अब आप में बहुत सारे लोगों ने शायद ट्रांसलेशन या तफसीर की क्लास की होगी। अब आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, इस क्लास में ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल ट्रांसलेशन या तफसीर का कोर्स ही नहीं किया हो, जिसको मतलब बिल्कुल मालूम नहीं हो, इसलिए ये कोर्स जो मैं करा रही हूँ एज इफ़ कि आपको कुछ नहीं आता, इस हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ। तो कभी भी ये नहीं सोचिए ये तो हमें बहुत इजी लगता है, ये तो हम कर दिए, अब ये क्या पढ़ा रही है। आपके क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 60 स्टूडेंट है और ज़रूरी नहीं कि हर एक को ये मतलब हर एक का मालूम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि आखिर तक 60 रहें या उससे ज़्यादा रहें, लेकिन कम ना हो। अब देखिए अनामता था, ता पे फतह थी, आपने क्या किया, अनाम तो पढ़ दिया, बहुत बड़ी गलती की। क्यों? अनामता का मतलब क्या है? तूने इनाम किया, एक आदमी यानी तूने इनाम किया, तुमने इनाम किया, सिंगुलर के लिए आता है, वाहिद के लिए आता है। अब हमने क्या, अनाम तो मैंने इनाम किया। अब देखिए कितनी बड़ी गलती की। मैं और तू में फ़र्क है ना, कि सेम है दोनों? नहीं हो सकते सेम। मैं अलग हूँ और तुम अलग हो। तो जो तू बोलते हैं ना, मैं इसलिए तू बोलती हूँ, ये हालांकि उर्दू में बहुत है ना, अच्छा नहीं समझा जाता है तू बोलना, लेकिन इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको सिंगुलर पिलुलर में समझ में आया। अभी तो अगर आपने अनाम तक का अनाम तो किया, तूने इनाम किया को मैंने इनाम किया, यानी इसमें क्या किया, हरकत का एक हरकत थी, सब फतह थी, ज़बर था, उसको आपने दम्मा दे दिया, पेश दे दिया, तो बहुत बड़ी गलती की, मतलब भी चेंज कर दिया आपने। फिर चौथी गलती जो करते हैं, हरकत की जगह सुकून और सुकून की जगह हरकत पढ़ देना। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक एग्जाम्पल लिखी हुई यहाँ पर, खौलकना था, उसके बदले हमने क्या किया, खौलकना, खौलकना कर दिया। तो इसमें देखिए कितनी बड़ी गलती हुई। खौलकना मीन्स उसका मतलब क्या है कि हमने पैदा किया। अब खौलकना, उसने पैदा किया हमको, तो बिल्कुल मतलब ही चेंज हो रहा है। तो सुकून की जगह क्या किया हमने, हरकत थी, उसको या तो सुकून था, उसको हमने हरकत में चेंज किया, तो ये भी बड़ी गलती होगी। इसी तरह और पांचवी गलती यहाँ पर लिखी हुई है, मुशद्दद की जगह, मुशद्दद का मतलब क्या है, जिस लेटर पे तशदीद हो मुशद्दद कहलाता है। तो मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ पढ़ना, यानी साकिन करके पढ़ना, सुकून दे दिया, और मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद पढ़ देना, यानी जहाँ पर सुकून था उसको आपने तशदीद करके पढ़ लिया, तो ये भी बहुत बड़ी गलती होगी। जैसे तब्बा था, तो उसकी बजाय आपने कहा तब, तो ये भी बड़ी गलती होगी। कभी मैंने कहा कि कभी मीनिंग चेंज हो जाती, कभी कुछ मीनिंगलेस ही हो जाता है, कुछ मतलब नहीं होता है। इंशाल्लाह मेरे जो नोट्स है उसमें भी इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी। इसके आगे यहाँ पर यही बुक का पहले कंप्लीट करते हैं कि इसमें देखिए लहन खफ़ी जो है, ये छोटी या गैर ज़ाहिरी जो गलती होती है उसको लहन खफ़ी कहते हैं। तो लहन खफ़ी, जैसे आप कहें कि गुन्ना या किसी हर्फ को कम मोटा पढ़ना। अब जहाँ पर गुन्ना करना है, आपने गुन्ना नहीं किया, तो वो लहन खफ़ी में आएगा। गुन्ना था, आपने गुन्ना नहीं किया, या गुन्ना नहीं था, आपने गुन्ना किया। अब ये गलती कौन पकड़ेगा, जिसको तजवीद आती हो। जिसको तजवीद नहीं आती हो वो तो झूमेगा, बोलेगा वाह गुन्ना, हर चीज़ में गुन्ना कर रहे हैं या कारी। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जहाँ भी गुन्ना किया जाए बहुत खूबसूरती आती है, वो खूबसूरती नहीं होती है जो तजवीद में है। जहाँ पर गुन्ना है वहाँ पर गुन्ना करे, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करें। बिना वजह गुन्ना करते ही गुनगुनाते रहना, ये गलत है। तो ये गलती सिर्फ वही जान सकता है जो तजवीद किया हो या जो स्कॉलर हो, तो वो गलती ये पकड़ सकता है आपकी। या जहाँ पर मोटा करना है उसको आपने पतला पढ़ दिया, या पतला था उसको मोटा कर दिया। अब ये मोटा और पतला, उसके लिए टर्म्स याद रखें। मोटे को कहते हैं मुफक्खम। मुफक्खम का मतलब क्या होता है, मोटा करके पढ़ना। मुरक्कक का मतलब होता है पतला करके पढ़ना।
तो पतले को मोटा या मोटे को पतला करेंगे, तो ये गलती कौन पकड़ेगा? वो भी जिसको तजवीद आती हो। इधर कुछ मिसाल मोटे और पतले की दी हुई है। जैसे यहाँ पर है सिरातो, सिरा रॉ है, रॉ पे फतह जब आती है ना, या अलिफ मद के साथ होता है, तो उसको मोटा पढ़ा जाता है। लेकिन किसने किस तरह पढ़ा? सिरात, सिरात, सिरा, रा कर दिया, रॉ ने किया, तो वो भी गलती होगी। बड़ी गलती के बड़ी गलती तो नहीं है ना, ये छोटी गलती होगी, यानी खुफिया होगी, हिडन होगी। अब यहाँ पर रा पे दम्मा आ जाते हैं, तो फिर वो मोटी होती है, रूबमा, रूबमा। अब किसने कहा रूबमा, रूबमा, तो वो गलती होगी, रू रू, इस तरह से पढ़ना होगा। तो मोटे को पतला या पतले को मोटा करना। लेकिन कभी कभी ये मोटा पतला बड़ी गलती में भी आ सकती है, लहन जली में भी आ सकती है। जैसे त है, उसको पतला पढ़ा जाता है, तो को मोटा पढ़ा जाता है, कॉफ को मोटा पढ़ा जाता है, काफ को पतला पढ़ा जाता है। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताई थी कुल और कुल, हाँ, इस तरह से। और मेरे ख्याल से मैंने कल्ब और कल्ब का कहा हुआ था, तो उसमें भी कितनी बड़ी गलती हुई थी। तो ये कभी कभी बड़ी गलती भी हो सकती है मोटे और पतले वाली की। अब इसके जो बारे में हुक्म आया हुआ है वो क्या है? लहन जली जो है वो क्या है? हराम है करना। अगर कोई करता है तो हराम के दर्जे पे आती है। और अगर कोई लहन खफी करता है तो मकरू है। मकरू यानी नापसंदीदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मकरू चीज़ करें हम? नहीं, बल्कि मकरू चीज़ को भी हमको, उससे हमें दूर रहना है, हमें मकरू चीज़ भी नहीं करनी होगी। तो ये लहन जली करना हराम है और लहन खफी करना मकरूह में आता है, नापसंदीदा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान भी रखनी होगी। लहन के बारे में भी याद रखिए, गलतियाँ बहुत सारी हमारी हो जाती हैं। हम कभी कभी हरकत के बारे में बहुत केयरफुल रहते हैं, लेकिन कभी दूसरी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं होता। लेटर इतना चेंज हो जाता है मखरज नहीं मालूम होने की वजह से या सिफत मालूम नहीं होने की वजह से। तो वो सारी चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। अब ये जो लेसन है उसके बारे में मैंने खुद अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, और ये नोट्स आपको मेरे अपने वेबसाइट पे भी मिलेंगे असाजिदून के। और लिंक मैं वो चैट बॉक्स में भी मेरा हमेशा लिखा हुआ होता है यूट्यूब पे, तो उसमें आप जाके देखिए। वहाँ पर मेरी अपनी वेबसाइट पे भी है, प्लस इसमें यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे इसके, जो पुराने वीडियोस हैं। बहरहाल पुराने और नए में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही हम इम्प्रूवमेंट करते हैं ना। तो अगर आपको ऐसे जस्ट तजवीज़ सीखनी है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। इवन RQ साइट पे भी मैंने अपने प्रेजेंटेशन खुद के अपने नोट्स बनाए हुए रखे हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पर भी मैंने कुछ नोट्स रखे हुए, वो भी आप हेल्प ले सकते हैं। ख़ास तौर से जो लोग तजवीद पढ़ा रहे हैं, इसमें हो सकता है ये क्लास में ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो इसके तजवीद के टीचर्स हों, तो बेशक आप मेरे प्रेजेंटेशन लेके किसी को भी सिखा सकते हैं। मुझे कोई पूछने की ज़रूरत नहीं, ये कोई कॉपीराइट नहीं है, ओनली फॉर सेक ऑफ अल्लाह बनाए हुए हैं। आप किसी से भी शेयर करें, उल्टा मैं इनकरेज करूँगी हर एक से शेयर करें, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और माशाल्लाह ने आपको ऐसा लगेगा कि ख़ासकर से आप बच्चों को अगर किसी सिखा रहे तो इंशाल्लाह वो कलरफुल होने की वजह से हो सकता है वो ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देने, लेक्चर्स पे ध्यान दें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप वो बेशक यूज़ करें। मुझे कोई पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये कॉपीराइट है या नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं है। आप जितना चाहे उसको मर्ज़ी चाहे इस्तेमाल करें, किसी से शेयर करें, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर मेरे अपने नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने ये किया हुआ है, जैसे हमने अभी जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, तो तजवीद क्या है, प्रेजेंटेशन है ना, तो डिटेल नहीं मिलेगी आपको तजवीद के बारे में। आपको इंट्रोडक्शन, फिर इल्म तजवीद क्या है अभी हमने पढ़े, फिर अरकान तजवीद वो बताएं, फिर उसके बाद लहन, लहन में लहन खफ़ी और लहन जली हमने देखे।
तो वो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद लहन खफ़ी जो है मकरूह है, लहन जली जो है हराम है, इस तरह से। फिर यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थोड़े से लिखे हुए, जैसे कल्ब और क़ल्ब में क्या फ़र्क है। लहन जली में आता है ना, कल्ब का मतलब क्या है, कुत्ता। क़ल्ब का मतलब क्या है, दिल। सैफ का मतलब क्या है, सैफ का मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। सैफ और सैफ, सैफ का मतलब है गर्मी, सैफ का मतलब है तलवार। अनअमत, तूने इनाम किया, अनअमतु, मैंने इनाम किया। खलक़ना, उसने पैदा किया हमको, खलक़ना, हमने पैदा किया। फिर उसके बाद ल, श्योरली, ज़रूर, ला, नहीं। देखिए यही तो मैं कहती हूँ उर्दू वाले जो बड़ी गलती करते हैं, ल और ला, बहुत नोटिस की मैंने, ल को ला कर देते हैं। अब ल का मतलब क्या है, श्योरली, ज़रूर बज़रूर, और हम क्या करें, ला, नहीं नहीं। कितने टोटली अपोजिट मीनिंग होती है, बहुत बड़ी गलती है। तो ये यहाँ पर, और फिर उसके बाद लहन खफ़ी में जो आता है मुफ़क्खम है। मुफ़क्खम का मतलब क्या है, मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ, और मुरक्कक का मतलब क्या है, पतले पढ़े जाने वाले हुरूफ। तो मुफ़क्खम को मुरक्कक कर दिया, मुरक्कक को मुफ़क्खम कर दिया। लेकिन मैंने यही कहा है कि कभी कभी ये लहन जली में भी आ सकता है। तो जैसे सैफ और सैफ में ही देखें, मुफ़क्खम और मुरक्कक, हाँ, तो वो भी लहन फिर जली में आ जाएगा। तो ये भी गलती होती है, खफ़ी भी आ सकती है, जली भी आ सकती है। फिर माँ भी गुन्ना, माँ या बा भी गुन्ना, यानी गुनने वाला है तो क्या किया, बिला गुनने के साथ पढ़ दिया, या बिला गुन्ना वाला है तो उसको माँ गुन्ना गुन्ने के साथ पढ़ दिया। तो ये लहन खफ़ी में आ जाएगा, जो हिडन जो गलतियाँ होती हैं। अब इस क्लास में ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, मैं एज इफ जैसे किसी को कुछ पता नहीं, उस हिसाब से ही पढ़ाऊँगी। इसमें कुछ इस्तिलाहात आप देखें कि कुछ इस्तिलाहात आई हुई हैं। हम चूँकि उर्दू में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हरकत को उर्दू की तरह, कैसे जैसे ज़बर है तो ज़बर ही बोलते हैं। अगर किसी को फ़तह बोला जाए तो फिर वो कंफ्यूज होता है बंदा कि फ़तह का मतलब क्या है। तो फ़तह का मतलब है ज़बर। ये टर्म्स आप याद करें, जिनको नहीं पता। फ़तह का मतलब होता है ज़बर। अरबी वाले फ़तह कहते हैं, ज़बर नहीं कहते। ज़बर उर्दू वाले कहते हैं, आई थिंक फ़ारसी में भी कहा जाता है, आई डोंट नो, लेकिन उर्दू वाले इसको ज़बर बोलते हैं, और अरबी में फ़तह कहा जाता है। जो पेश है उसको दम्मा कहा जाता है, दम्मा यानी पेश, दम्मा अरबी में कहा जाता है। फिर जो ज़ेर है उसको कसरा कहते हैं, कसरा का मतलब है ज़ेर। अगर किसी हर्फ पर ज़बर आ जाए तो वो जो हर्फ है वो मफ्तू कहलाएगा, बा मफ्तू बोलेंगे उसको। अगर किसी हर्फ पे दम्मा आ जाए, पेश आ जाए, तो उसको मदमूम कहेंगे। दम्मे से है ना, मदमूम, मफ़ऊल के स्केल पे जिस पे काम किया गया है ना। अब जिस लेटर के नीचे कसरा आ जाए, ज़ेर आ जाए, उसको कहेंगे मकसूर, बा मकसूर। या बा लेटर है इसलिए बा बोल रही हूँ, अगर जीम आता है तो जीम मकसूर होगा, तो सो ऑन। तो इन टर्म्स को आप याद करें। उसके आगे दूसरे टर्म्स आएंगे, जैसे तनवीन आती हैं, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश, तो उसको क्या कहेंगे अरबी में। अगर दो ज़बर आती हैं तो उसको अरबी में कहते हैं फ़तहतैनी या फ़तहतानी। फ़तहतैनी भी कह सकते हैं, आईनी, दो, आईनी, आनी जो साउंड होती है ना, दो के लिए होती है। तो फ़तहतनी या फ़तहतानी भी कहा जाता है दो ज़बर को। दो पेश आ जाए तो उसको कहेंगे दमतैनी या दमतानी कहेंगे, यानी दो पेश को आनी आईनी की आवाज़ में हम कह देंगे दमतैनी या दमतानी, ये दो पेश को कहेंगे। दो ज़ेर आ जाए यानी दो कसरा आ जाए तो उसको कहेंगे कसरतैनी या कसरतानी। जब भी आईनी आनी वही साउंड दो के लिए आती है। तो ये आप टर्म्स याद करें, और जिन लेटर्स पे भी
तनवीन आएगी उसको कहेंगे मुनव्वन लेटर है, ये मुनव्वन तनवीन से हैं। तो ये इस्तिलाहात। और फिर उसके बाद सुकून जो होता है, अलामत सुकून जो होती है, वो कभी कभी हम जिसे कहते हैं ना जज़म, जज़म कहते हैं उर्दू वाले, वही सुकून जो है उसको आप देखेंगे कभी सर्कल जैसा बनाया हुआ होता है, कभी दाल की शक्ल में होगा, कभी जो उर्दू का आर्ट लिखा हुआ रहता है या इंग्लिश का जो अपोजिट वी लिखा हुआ होता है, उस तरह से भी ये आ सकता है। तो ये सुकून जो होता है उसको, जिस लेटर पे सुकून आएगा तो उसको कहेंगे ये लेटर साकिन है या मजजूम है, जज़म के साथ है। फिर तशदीद, तशदीद को हम भी तशदीद ही कहते हैं। जैसे तशदीद किसी भी तरह आ सकता है, फ़तह, दमा, कसरा के साथ। लेकिन अक्सर जो हमारे उर्दू वाले इसमें धोखा खा जाते हैं। ये जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम तो सिर्फ समझते हैं कि अगर किसी लेटर के नीचे ज़ेर आए तो वो ज़ेर होती है, लेकिन तशदीद के नीचे ज़ेर जब आती है ना, तो उसका मतलब है ये ज़ेर है, कसरा है, ये ज़बर नहीं है, फ़तह नहीं है। ये देखिए तशदीद के ऊपर अगर ऐसी स्ट्रोक आ जाए, एक लाइन आ जाए, तो वो फ़तह होगी, ज़बर होगा। अगर तशदीद के नीचे अगर उसके कोई स्ट्रोक आती है तो वो कसरा होगा। तो ये एक गलती कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस लेटर पे भी तशदीद आए तो उसको कहते हैं वो लेटर मुशद्दद है, तशदीद से है, मुशद्दद है। तो ये भी याद रखें। अब अलिफ और हमज़ा में फ़र्क क्या है? अलिफ जो होता है वो खाली अलिफ होता है, उसके ऊपर ना कुछ होता है ना नीचे कुछ लिखा हुआ होता है। अगर अलिफ के ऊपर आपको फ़तह आए, दम्मा आए, कसरा आए, यानी ज़बर पेश या ज़ेर आ जाए या सुकून आ जाए, जज़म आ जाए, तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहेगा, बल्कि इसको हम कहेंगे ये हमज़ा है। हमज़ा या तो इस तरह भी लिखी होती है, या आप देखेंगे कि हमज़ा को हम जिस तरह हमज़े की शक्ल में भी लिखते हैं कर्व देके, तो उस तरह भी हमज़ा लिखी जाती है। तो हमज़ा ये जो है वो हमज़ा होगी। इसलिए तो वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो अल्फ़ाबेट्स है ना अरबी के, वो कुछ कहते हैं कि 28 हैं, कुछ कहते नहीं 29 है। वो क्यों कहते हैं, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यही हमज़ा या अलिफ के डिफरेंस की वजह से। जो लोग कहते हैं कि अलिफ और हमज़ा एक ही चीज़ हैं, वो कहते हैं टोटल अरबिक अल्फ़ाबेट्स जो है वो 28 है। लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं अलिफ अलग है, हमज़ा अलग है, अलिफ पे अगर कुछ हरकत आए या सुकून आए जो, तो वो अलिफ नहीं होती, तो फिर वो कहते हैं कि वो 29 होगी। तो इसलिए ये डिफरेंस पाया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं 28 अल्फ़ाबेट्स है, कुछ लोग कहते हैं 29 है। तो ये जो हुरूफ हिजा है वो इसलिए हमारे इसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो ये फ़र्क है हमज़ा और अलिफ में। अब यहाँ पर देखिए हुरूफ हिजा पूरा लिखा हुआ है, इसको मैं सिर्फ बग़ैर तजवीद के साथ पढ़ के, यानी बग़ैर तजवीद यानी जो मद वगैरह का कानून है ना, वो उसके बग़ैर पढ़ के सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को पढ़ूँगी, क्योंकि आप अब तालिब इल्म हैं तो आपका अल्फ़ाबेट्स ओरिजिनल जैसे कैसे अरबी लोग पढ़ते उस तरह आनी चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं उर्दू की तरह अलिफ बे ते से पढ़ने जाते हैं, अलिफ बे ते से नहीं है कि, बल्कि अरब कैसे पढ़ते, अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल ज़ाल रो ज़ाय सीन शीन सौद दौद तो ज़ो आइन गौइन फ़ा क़ाफ काफ लाम मीम नून हा वाव और या। अब ये मैंने खींचतान के नहीं पढ़ी, जो कानून आता है खींचतान के पढ़ने का वो किस तरह होगा वो इंशाल्लाह आपको तजवीद के जो मद के रूल करेंगे उस वक्त आपको समझ। اقرأ أخيا ورتل القرآن
اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان